In the name of Allah, the most beneficent and the most kind to all of us. Assalamu alaikum, dear students. So, in first year English today, we are going to discuss the translation of the chapter Reading Text 3, the United Nations. I have already discussed about the summary of this chapter and I have uploaded it on YouTube as well. But some of the students were requesting to do the line by line translation of this chapter. So I'm going to do the translation. So there are three parts of this chapter. So the first part is about the foundation of UNO. The second part is about the organization of UN. And the third part is about the several organs or bodies which are connected to the work of the UN. So the United Nations is an international organization which actually works for world peace and to remove discontent from the world. So we are going to start here. On page number 24, you can see on your book. In the spring of 1945, the Second World War was coming to an end. 1945 के बाहर के मौसम में दूसरी जंग अजीम अपने खात्मे के करीब आ रही थी. The war had brought misery to all the world. ये जंग लेकर आई थी मुसीबत सारी दुनिया के लिए. Bring के सेकंड फॉर्म है brought. Misery means मुसीबत. सारी दुनिया के लिए मुसीबत लेकर आई थी. Millions of people had been killed and wounded. लाखों लोग मारे गए थे या और ज़ख्मी हो गए थे. These included women and children. इसमें शामिल थे औरतें और बच्चे भी. Millions of pound worth of property had been destroyed. लाखों मालियत की प्रॉपर्टी जायदाद जो है वो तबाह हो गई थी. Millions of people had been made homeless. लाखों लोग बेघर हो गए थे. Millions suffered from poverty, hunger and disease. और लाखों लोग मुब्तला हो गए थे गुर्बत, भूख और बीमारी में. The conscience of the man was roast. इंसान का ज़मीर जागा. Conscience में ज़मीर और roast means जागा. इंसान का ज़मीर जागा. Man wanted peace. इंसान चाहता था अमन. Let there be an end to war. आओ दुनिया से जंगों को ख़त्म करें. Let there be peace and goodwill on earth. आओ दुनिया में अमन और खैर ख्वाही का जज्बा कायम करें. Let man live with his fellow man as brother with brother. आओ इंसान को जीने दें एक भाई भाई के तौर पे या भाई भाई के लिहाज से. So prayed the peoples of the world. इस तरह से दुआ मांगे दुनिया के लोगों ने. The human race was drawing closer together. नस्लें इंसानी एक दूसरे के करीब आ रही थी. The telephone, the telegraph, the wireless were helping the quick exchange of news and information. टेलीफोन, टेलीग्राफ मतलब तार और वायरलेस मतलब रेडियो वगैरह वो तेज़ तरीन तबादले में मदद कर रहे थे ख़बरों की और इत्तलात की. द एरोप्लेन वॉज लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. हवाई जहाज़ जोड़ रही थी दुनिया के दूर दराज हिस्सों को. Ignorance, poverty, disease, oppression in one part of the world were having their effect on other parts. जहालत, गुर्बत, अमराज, ऑपरेशन में जुल्म सितम अगर दुनिया के एक हिस्से में होता था तो उसका असर दुनिया के दूसरे हिस्से में भी हो रहा था. द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग वन इन सम थिंग्स. दुनिया कुछ चीज़ों में एक हो रही थी. वाई शुड इट नॉट बिकम वन इन ऑल. क्यों ना उसको पूरी तरह से एक हो जाना चाहिए था. सो द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड came together in April 1945 and organized the UNO or United Nations Organizations or the UN means United Nations for short. इस तरह दुनिया की अक़वाम आए और मिले अप्रैल 1945 में और कायम किया उन्होंने UNO अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम या अक़वाम मुत्तहिदा हम उसको मुख्तसरन कह सकते हैं. Let us not turn our eyes away from the sufferings of our neighbors. आए अपनी आँखों को ना मोड़ें फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अवर नेबर्स अपने पड़ोसियों के दुख दर्द से उनकी परेशानियों से. लेट अस स्ट्रेच द हैंड्स ऑफ ब्रदरहुड टू वन अनदर. आए और हाथ बढ़ाएं भाईचारे का एक दूसरे की जानिब. लेट अस यूनाइट टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर एंड बेटर प्लेस. आए और दुनिया को बना दे एक ज़्यादा खुशी वाला और एक ज़्यादा बेहतर जगह जीने के लिए. एंड लेट देयर बी पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड. और आए दुनिया में अमन और खुशियाँ कायम करें. They cried, वो चिल्लाए. The UN was thus formed in April 1945 and is today the spearhead of the march of civilization against evil of all kinds.
यूएन इस तरह से बनी पैदा हुई अप्रैल 1945 में और आज स्पेयर हेड है, मशल बरदार है तहजीब की दौड़ में हर किस्म की बुराइयों के खिलाफ। द यूनाइटेड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड मीट इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुनिया के मुत्तहिदा अक़वाम मिलते हैं न्यूयॉर्क में, रियासत हाय मुत्तहिदा में। दे टॉक ओवर अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ पीस एंड वॉर एंड ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस ऑफ टू एज मैनी ऑफ दीज एज दे कैन। वो बात करते हैं फौरी मसाइल के बारे में जो अमन की और जंग की बातें हैं, और कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा मसाइल हो उनके हल वो तलाश कर सकें। द यूएन डील्स विद क्वारल्स दैट माइट लीड टू वॉर अमंग द नेशंस। यूएन बात करती है उन जंगों के बारे में जो सबब बन सकती है वॉर अमंग द नेशंस, कौमों के बीच लड़ाई का। द एम ऑफ द यूएन इज़ टू प्रिवेंट वॉर इन द वर्ल्ड। यूएन का काम यह है कि दुनिया भर से जंग को रोका जाए, एंड टू रीच अ स्टेट ऑफ लास्टिंग पीस, और हमेशा कायम रहने वाली एक इसकी अमन की हालत तक पहुंचा जाए। जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ आर मोर और लेस अनसेटिस्फैक्ट्री इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आम हालात ज़िंदगी कम या ज़्यादा गैर तसल्ली बख्श है दुनिया के बहुत से हिस्सों में। दिस अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डिसकॉन्टेंट एंड लॉन्ग कंटिन्यूड डिसकॉन्टेंट मे लीड टू वॉर। ये अनसेटिस्फैक्ट्री स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब ये गैर तसल्ली बख्श मामलात की जो हालत है, ये ज़िम्मेदार होती है बहुत सारी डिसकॉन्टेंट, बहुत सारी बेचैनी की, और देर तक जारी रहने वाली बेचैनी में लीड टू वॉर, जंग का सबब बन सकती है। वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर इज़ टू रिमूव एज मैनी कॉजेज फॉर डिसकॉन्टेंट एज पॉसिबल। एक तरीका जंग को रोकने का ये है कि जितना हो सके मुमकिन उतने बेचैनियों को ख़त्म किया जाए। वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग वॉर इज़ टू रिमूव एज मैनी कॉजेज फॉर डिसकॉन्टेंट एज पॉसिबल। एक तरीका जंग को रोकने का तो ये है कि जितना हो सके उतने बेचैनी को ख़त्म कर दें। सो द यूनाइटेड नेशंस हैव सेट देमसेल्व्स टू स्टडी लिविंग कंडीशंस इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड टू हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज़ एंड सोशल एंड पॉलिटिकल इनजस्टिस। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद को सेट किया है कि वो स्टडी करे, मुताला करे हालात ज़िंदगी का दुनिया के हर हिस्सों में, और कोशिश करें कि वो और मदद करें कि लड़ाई करें हम गुर्बत के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़, अमराज के ख़िलाफ़, और समाजी और सियासी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़। प्रिवेंटिंग अ वॉर इज़ डिफ़िकल्ट। जंग को रोकना मुश्किल काम है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स। ये एक ऊंची सियासत का हिस्सा है। फीलिंग्स रन हाई, जज्बात ऊंचे होते हैं, जज्बात बुलंद होते हैं। अटैम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस आर ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अमन को कायम करने की कोशिशें खुली होती हैं नासमझियों के लिए। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर, अटैम्प्ट्स ऑफ पीस मेकिंग समटाइम्स सेट देम फर्दर अपार्ट। बजाय इसके कि लोग करीब आ जाएं, अमन कायम करने की कोशिशें कभी कभार उनको और दूर कर देती हैं। द पाथ ऑफ द पीस मेकर इज़ इंडीड हार्ड। अमन कायम करने में का रास्ता यकीनन मुश्किल होता है। द यूएन हैज सक्सीडेड इन अ फ्यू केसेस इन ब्रिंगिंग पीस वेयर देयर वाज नो पीस बिफोर। यूएन कामयाब हुई है कुछ केसेस में अमन लाने में उन तमाम जगहों पर जहाँ पर पहले कभी अमन नहीं था। बट इन अ ग्रेट मैनी केसेस द रिजल्ट्स हैव नॉट बीन सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन बहुत सारे मामलात में या बहुत सारे केसेस में जो नताइज हैं वो तसल्ली बख्श नहीं है। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ लिटिल क्वारल्स बिटवीन नेशन। दुनिया भरी है छोटी छोटी लड़ाइयों से जो कौमों के बीच होती हैं। एनी वन ऑफ दीज लिटिल क्वारल्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटब्रेक ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर। उनमें से ही कोई एक छोटी लड़ाई वो सबब बन सकती है, जिम्मेदार हो सकती है एक नई जंग को शुरू होने का या नए आलमी जंग को शुरू करने का सबब बन सकती है। बट लेट अस नॉट डिस्पेयर, फॉर देयर इज़ वन पार्ट ऑफ द वर्क ऑफ द यूएन दैट फिल्स अस विथ होप। लेकिन मायूस मत हो। डिस्पेयर मीन्स मायूसी, बट मायूस मत हो, चूँकि एक काम ऐसा है यूएन का जो हमारे अंदर उम्मीदें भर देता है। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ फाइटिंग, दिस इज़ द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल एवल्स। और वो काम क्या है भाई? कि समाजी बुराइयों के ख़िलाफ़ लड़ाई का। Men and women from different parts of the world of different races and religions sit together, think, plan and actually work together to improve conditions of life in countries they have not known before. मर्द और औरतें दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ नस्लों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के बैठते हैं, सोचते हैं, मनसूबाबंदी करते हैं और असल में काम करते हैं कि वो बेहतर बना दे उन ममालिक के लोगों के हालात ज़िंदगी को जो उससे पहले नहीं जानते थे। दिस वर्क ब्रिंग्स द वर्कर्स क्लोजर टुगेदर देन एनीथिंग एल्स कैन। ये काम लोगों को या कारकुनों को इतना करीब ले आता है जितना कोई और काम करीब नहीं ला सकता।
It also brings them closer together to the people that to of the land which they are trying to help. ये करीब ले आता है उनको उन लोगों के भी करीब ले आता है जिनके वो कोशिश कर रहे होते थे मदद करने की. Who would go to war with the people to whose betterment one has given several years of one's life? कौन जंग करना चाहेगा उन लोगों के साथ जिनकी बेहतरी के लिए किसी ने अपने ज़िंदगी के कई साल दिए हों. मतलब अगर जिस कंट्री के लिए आपने इतनी मेहनत की होगी उसको बेहतर बनाने में, उसको इम्प्रूव करने में, तो आप कभी भी उस मुल्क के साथ लड़ाई करना नहीं चाहेंगे. जिस घर को आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं उस घर को कभी आप खुद तोड़ना नहीं चाहेंगे. हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट इंटरनेशनल वर्क मीन्स. यहाँ एक मिसाल है कि बैनुल-अक़वामी काम से क्या मुराद है. कैनाल्स, रिवर्स एंड लेक्स हैव ऑलवेज बीन नेचुरल हाईवेज इन फ्लैट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नहरें, दरियाएं और झीलें वो हमेशा से नेचुरल हाईवे रही, कुदरती गुजरगाहें रही हैं दुनिया के हमवार हिस्सों में. मिलियंस ऑफ पीपल पास देयर लाइफ्स इन बोट्स ऑन द क्वाइट इनलैंड वाटरवेज. लाखों लोग अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं कश्तियों में इन खामोश ज़ेर ज़मीन वाटरवेज आबी गुजरगाहों में. इन मोस्ट ऑफ द फॉर ईस्ट हाफ द पीपल लिव ऑन द ग्रेट रिवर्स. ज़्यादातर मशरिक़ बईद में फॉर ईस्ट मतलब मशरिक़ बईद, ज़्यादातर मशरिक़ बईद में आधे लोग रहते हैं ग्रेट रिवर्स मतलब अजीम दरियाओं में, उसके ऊपर रहते हैं. सो द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू और एशियन एक्सपर्ट्स टू व्यू द ऑपरेशन ऑफ वाटरवेज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो अक़वाम मुत्तहिदा ने मुनज़्ज़म किया, उन्होंने जो है वो कायम किया एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टूर एशियाई माहिरीन का कि वो देखें ऑपरेशंस को, देखें कारकर्दगी को, देखें वाटरवेज की दुनिया के दूसरे हिस्सों में. मेंबर्स ऑफ द टूर केम फ्रॉम बर्मा, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड एंड वियतनाम. इस दौरे के अरकान आए थे बर्मा से, इंडिया से, इंडोनेशिया से, पाकिस्तान से, थाईलैंड से और वियतनाम से. द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. गुरुओं ने पहले दौरा किया थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान और इंडिया का ताकि उनके मुश्किलात के बारे में, परेशानियों के बारे में जान सकें. The Asians then went to Europe, where they visited shipyards and waterways in France, Germany and the Netherlands. एशियंस उसके बाद चले गए यूरोप, जहां उन्होंने सफ़र किया शिपयार्ड्स का, मतलब जहां कश्तियां बनाई जाती हैं, और वाटरवेज का, पानी के रास्तों का, फ्रांस में, जर्मनी में और द नेदरलैंड्स में, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता है. दे सॉ न्यू टाइप्स ऑफ बोट्स इन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लिस्तान में और स्कॉटलैंड में नए किस्म की कश्तियाँ देखी. गोइंग ऑन टू द यूनाइटेड स्टेट्स दे स्टडीड वाटर ट्रांसपोर्ट ऑन द ओहायो एंड मिसिसिपी रिवर्स एंड अलॉन्ग द कोस्टल कैनाल्स. उसके बाद वो अमेरिका चले गए और वहाँ उन्होंने मुताला किया पानी की आमदोरफ्त का ओहायो में और मिसिसिपी दरियाओं में, ओहायो रिवर में, मिसिसिपी रिवर में, और साथ साथ कोस्टल कैनाल, साहिली जो नहरें थी उनका भी मुताला किया. The members of the tour discussed the problems of water transport with experts in the countries they visited. इस दौरे के अरकान ने बात की पानी के मसाइल के बारे में और पानी की आमदोरफ्त के बारे में माहिरीन के साथ जहाँ जहाँ वो जिन ममालिक में वो सफ़र करने के लिए गए. All this information had to be thought over and sorted out. इन तमाम इत्तलात पे सोचा जाना था, उनको तरतीब में रखा जाना था. To find what might be useful in Asia, ताकि हम ढूंढ पाएँ कि एशिया के लिए क्या अहम है, क्या कारआमद है. The members of the tour returned to their countries prepared not to imitate what they had seen in the West, but to their own work with a wide background of experience. इस तरह से उस दौरे के अरकान अपने अपने वतन वापस लौट गए. अब वो तैयार थे not to imitate, नकल करने के लिए नहीं कि जो कुछ उन्होंने देखा था मगरिब में, बल्कि वो अपने खुद का काम करने के लिए तैयार थे. A wide background of experience, एक वसी तजुर्बाती पस मंज़र के साथ वो एक काम करने के लिए तैयार थे. UN Day is celebrated on 24th October every year. अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी दिन 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है. Patriotism today should mean loyalty not only to one's own country but to the UN and its ideal. हुब्बुल वतनी का आज मतलब होना चाहिए वफ़ादारी सिर्फ अपने ख़ुद के वतन से नहीं बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ख़यालात से. On UN Day we pledge ourselves anew to advance the cause of brotherhood and peace in the world. UN Day में हम अहद करते हैं खुद से कि हम आगे बढ़ाएंगे भाईचारे को और दुनिया में अमन को आगे बढ़ाएंगे. The birth of the UN we hope will one day be looked upon as an important event in world history. अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, उसकी पैदाइश, हमें उम्मीद है एक दिन उसको तारीख़ में, आलमी तारीख़ में एक अहम वाक़ये के तौर पे देखा जाएगा.
So this is the first part of this chapter, in which we discussed about the foundation of the UNO and aims and objective of the UNO, कि अक़वाम मुत्तहिदा क्यों बनाई गई और इसके अलावा इसके क्या अगराज़ व मकासद थे बनाने के। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं कि हाउ द UN इज़ ऑर्गेनाइज्ड। सो लेट अस सी हाउ द UN इज़ ऑर्गेनाइज्ड। आइए देखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम किस तरह होती है। फर्स्ट पार्ट ए पॉइंट है, द सेंट्रल एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द UN इज़ द जनरल असेंबली वेयर एवरी मेंबर नेशन इज़ रिप्रेजेंटेड। मरकज़ी और बुनियादी धड़ UN का या अज़ू UN का वो है जनरल असेंबली, जहाँ पर हर मेंबर कौम उसकी नुमाइंदगी होती है। ईच मेंबर नेशन कैन सेंड 5 रिप्रेजेंटेटिव टू द असेंबली बट ईच मेंबर हैज़ ओनली 1 वोट। हर रुकन मुल्क, हर रुकन कौम 5 नुमाइंदे भेज सकती है असेंबली में, लेकिन हर एक रुकन का सिर्फ एक ही वोट होता है। द जनरल असेंबली में कंसिडर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू पीस एंड टू द एडवांसमेंट ऑफ हैप्पीनेस एंड जस्टिस इन द वर्ल्ड। जनरल असेंबली सोच सकती है किसी ऐसे सवाल के बारे में जो अमन के बारे में हो या खुशियाँ और इंसाफ को फैलाने के बारे में हो दुनिया में। इट इलेक्ट्स इट्स ओन प्रेसिडेंट एट ईच सिटिंग। हर मुलाकात में वो अपना सदर खुद मुंतखब करती है। Besides 6 main committees for its usual work, committees of many kinds are appointed for special purposes and to prepare the work for the regular sittings of the assembly. मतलब इसके 6 बुनियादी कमिटीज़ इसके हैं। इसके अलावा इसकी मामूली काम के 6 बुनियादी कमेटियों के अलावा बहुत तरह की और कमिटीज़ को अपॉइंट किया जाता है ख़ास मकासद के लिए, ताकि वो काम कर सकें, असेंबली के रेगुलर सिटिंग्स जो बाकायदगी से मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में काम कर सकें। बी है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज़ मेड अप ऑफ 15 मेंबर्स। सलामती कौंसिल 15 रुकनों से मुश्तमिल होती है, 15 रुकन के साथ बनी होती है। 5 ऑफ दीज आर परमानेंट मेंबर। मेरे से 5 परमानेंट मेंबर हैं, मुस्तकिल अरकान हैं। चाइना, फ्रांस, UK, रशिया, US, ये सारे हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं। ऑफ द अदर 10, 3 ईच ईयर आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली फॉर 2 ईयर टर्म्स। और बकिया 10 में से 3 को हर साल इलेक्ट करती है जनरल असेंबली 2 साल की मुद्दत के लिए। मैटर्स ऑफ इम्पोर्टेंस हैव टू बी सपोर्टेड बाय एवरी वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर। अहम मामलात को सपोर्ट किया जाना होता है 5 मुस्तकिल अरकान में से हर किसी एक का। दैट इज़ ईच वन ऑफ दीज नेशंस हैज़ अ वीटो। इसका मतलब ये हुआ कि इन 5 में से हर एक नेशन के पास एक वीटो पावर होता है। इफ वन ऑफ देम सेज नो टू एनी मैटर, इट इज़ ड्रॉप्ड फॉर द टाइम बीइंग एट लीस्ट। अगर 5 कंट्रीज़ में से किसी एक पे ने भी नो कह दिया किसी मामले पर, तो उस मामले को रद्द कर दिया जाता है उस वक्त तक के लिए। थर्ड सी पॉइंट है कि द चीफ ऑफिसर ऑफ द UN इज़ द सेक्रेटरी जनरल। सबसे बड़ा अफसर UN का सेक्रेटरी जनरल होता है। ही हैज़ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसकी अहम सियासी जिम्मेदारियाँ होती हैं। द सेक्रेटरी जनरल इज़ अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली विद द अप्रूवल ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करती है जनरल असेंबली और सलामती काउंसिल की रजामंदी के साथ। ही सर्व्स फॉर अ टर्म ऑफ 5 years until the election of his successor। वो 5 साल की मुद्दत के लिए खिदमत करता है, यहाँ तक कि उसके सक्सेसर, उसके मतलब कि जानशीन की उसके बाद इलेक्शन होती है, उसकी बारी आती है। एवरी ईयर द सेक्रेटरी जनरल मेक्स अ रिपोर्ट टू द जनरल असेंबली ऑन द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर साल सेक्रेटरी जनरल एक रिपोर्ट तैयार करके जनरल असेंबली को देता है, जिसमें वो तंजीम के काम के बारे में बताता है। डी पॉइंट है कि देयर इज़ स्टाफ ऑफ अबाउट 3,500 पीपल वर्किंग डायरेक्टली अंडर द सेक्रेटरी जनरल इन न्यूयॉर्क। तकरीबन 3,500 लोगों का अमला काम करता है सेक्रेटरी जनरल के अंडर में न्यूयॉर्क में। देयर आर ऑल्सो स्पेशल ब्रांचेज ऑफ द सेक्रेटेरिएट विथ हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एट वेरियस अदर सेंटर्स। दूसरे और भी कुछ मखसूस ख़ास धड़े हैं सेक्रेटेरिएट की, जिसमें सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं बहुत से दूसरे मराकज़ में। There is no place in the world where people from so many different nations work in the same organization as at the headquarters of the UN। दुनिया में ऐसी कोई और जगह नहीं है जहाँ पर इतने सारे अलग अलग कौमों के लोग काम करते हैं एक ही तंजीम के लिए, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होता है। UN employees come to the secretariat from nearly every country on earth।
यूएन के काम करने वाले आते हैं सेक्रेटेरिएट में दुनिया के तकरीबन हर एक मुल्क से, बट दे डू नॉट रिप्रेजेंट देयर कंट्रीज़। लेकिन वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। देयर आउटलुक हैज़ टू बी इंटरनेशनल। उनके खदोखाल इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी होना चाहिए, या उनका खदोखाल बैनुल अक़वामी होता है। द सेक्रेटेरिएट हैज़ मच वर्क टू डू। सेक्रेटेरिएट को बहुत काम करना पड़ता है। द स्टाफ हैज़ टू प्रिपेयर द मैटर ऑफ द वेरियस मीटिंग्स। स्टाफ को मुख्तलिफ मीटिंग्स के लिए मादा तैयार करना होता है। दे हैव टू मैनेज द मीटिंग्स। उनको मीटिंग्स को मैनेज करना होता है, उसका बंदोबस्त करना होता है। दे हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट इज़ सेड एंड डन। उनको रखना होता है एक रिकॉर्ड, हर वो कुछ जो कहा गया और किया गया। दे हैव टू प्रिपेयर डेली रिपोर्ट्स फॉर द प्रेस एंड द रेडियो। उनको अखबारात और रेडियो के लिए डेली रिपोर्ट तैयार करनी होती है। During the various meetings, translators sit in soundproof cabins listening to the speeches and translating them at the same time. मुख्तलिफ मीटिंग्स के दौरान तर्जुमान बैठते हैं साउंड प्रूफ कमरों में और सुनते हैं स्पीचेस को, तकरीरों को, और उनको ट्रांसलेट करते हैं, तर्जुमा करते हैं उसी वक्त, सो दैट ईच मेंबर कैन हेयर द स्पीच इन हिज ओन लैंग्वेज थ्रू हेडफोन। ताकि हर रुकन सुन ले तकरीर को अपनी ख़ुद की ज़बान में हेडफोन के ज़रिए। The staff does a great amount of scientific study of various urgent problems of the day. स्टाफ बहुत ज़्यादा साइंसी मुताला भी करता है मुख्तलिफ फौरी मसाइल का जो कि उस दौर के, उस दिनों के होते हैं, तो उनके बारे में साइंटिफिक स्टडीज़ भी करना स्टाफ का काम होता है सेक्रेटेरिएट के। तो दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट जिसमें हमने देखा सेकेंड पार्ट के अंदर के यूएन किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब से जनरल असेंबली क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, सेक्रेटरी जनरल क्या करता है, सेक्रेटेरिएट के अंदर क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ अबाउट वेरियस अदर ब्रांचेस ऑफ द यूएन। देयर आर सेवरल स्पेशलाइज्ड बॉडीज एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ द यूएन। बहुत से और मखसूस धड़े हैं जो कि मुंसलिक हैं यूएन के काम से। सम ऑफ दीज आर पार्ट्स ऑफ द यूएन ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कुछ तो अकाम मुताबिक के तंजीम के हिस्से हैं। Some are independent but are closely connected with the work of the UN. कुछ आज़ाद हैं लेकिन बहुत हद तक वो कनेक्टेड है, मुंसलिक है यूएन के काम से। We can refer here to the work of only a few of these important bodies. हम यहाँ पर हवाला देते हैं सिर्फ कुछ अहम धड़ों के काम के बारे में बस। There is the International Bank which lends money to member nations for carrying through some work of public importance and usefulness such as electric power plants, road, railways, canals and flood control. सबसे पहले है बैनुल अक़वामी बैंक जो कर्ज़ा देती है अपने अरकान ममालिक को ताकि वो कुछ अवामी अहमियत का और फ़ायदे का काम कर सकें, जैसे कि बिजली घर बना सकें, सड़कें बना सकें, रेलवे बना सकें, नहरें बना सकें, या फिर सैलाब को रोकने का काम कर सकें। An example of the wonderful effect of one of these loans is found in a small village on the west coast of Mexico. एक मिसाल देते हैं कि किस तरह से हैरत अंगेज़ असर होता है इस तरह के एक लोन्स का, कर्ज़ों का, जिसको हम पाते हैं मेक्सिको के मगरबी साहिल की तरफ एक छोटे से गांव में। In 1951 the bank gave a loan for an electric plant. 1951 में बैंक ने मेक्सिको के इस छोटे गांव को एक कर्जा दिया इलेक्ट्रिक प्लांट, बिजली घर बनाने के लिए। Within 3 years the population increased threefold. 3 सालों में आबादी 3 गुना बढ़ गई। Industrial users of electricity increased from 3 to 33. सनती सार्फिन बिजली के वो 3 से 33 हो गए। The town started a radio station, a daily newspaper and a night school. The town started a radio station, a daily newspaper and a night school. टाउन ने शुरू किया एक रेडियो स्टेशन, एक रोज़नामा का अखबार और एक रात के स्कूल। There were 7 times as many children in school as there were before the electric plant was built. इलेक्ट्रिक प्लांट, बिजली घर बनने से पहले जितने बच्चे स्कूल में थे उससे 7 गुना ज़्यादा बच्चे स्कूल में बाद में थे जब इलेक्ट्रिक प्लांट मेक्सिको के उस छोटे से गांव में लगा दिया गया। सो दीज वर द वंडरफुल इफेक्ट्स ऑफ द लोन्स गिवन बाय इंटरनेशनल बैंक टू मेक्सिको। देयर इज़ द यूएन चिल्ड्रंस फंड और यूनिसेफ, द फ्रेंड ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके बाद है यूएन चिल्ड्रंस फंड या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ इज़ द एक्रोनिम ऑफ दिस वर्ड। तो यूनिसेफ जो है वो दोस्त है बच्चों का सारी दुनिया में।
जो सारी दुनिया के बच्चों का दोस्त है। इट स्पेशलाइजेस इन द रिलीफ ऑफ चिल्ड्रन, ये ख़ास है बच्चों की मदद के लिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टार्टेड इन 1946, but the permanent organization came into being on 7th April 1948 to work on international health. आलमी सेहत की तंजीम शुरू हुई तो 1946 में, लेकिन एक बाकायदा तंजीम का क़याम हुआ 7 अप्रैल 1948 में, ताकि बैनुल-अक़वामी का सेहत पर काम किया जा सके। 7th अप्रैल इज़ नाउ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को मनाया जाता है सारी दुनिया में आलमी सेहत के दिन के तौर पर। WHO advises member countries on public health and on the control of disease and makes war on many widespread disease. WHO नसीहत करती है मेंबर ममालिक को पब्लिक हेल्थ के बारे में, अवामी सेहत के बारे में, और किस तरह से बीमारियों को रोका जाए और किस तरह से जंग की जाए, किस तरह से लड़ाई की जाए बहुत से वबाई अमराज से। In the Terai district of Uttar Pradesh, malaria has been wiped out by WHO teams, enabling farmers to raise their outputs by 50%. उत्तर प्रदेश के टेराई ज़िले में मलेरिया को ख़त्म किया था WHO की टीम ने, जिससे किसान काबिल हो गए थे कि वो अपने पैदावार को बढ़ा दें 50% तक। An example of the UNICEF and WHO work is their fight against yaws, a disease of hot wet climates. एक और मिसाल यूनिसेफ और WHO के काम की क्या है भाई, उनके यॉस के ख़िलाफ़ लड़ाई है, जो कि एक मर्ज़ है गर्म मरतूब आबो हवा का। Few die of yaws, but many become helpless and live on as a burden to their relatives. कुछ लोग मर जाते हैं यॉस की बीमारी से, लेकिन ज़्यादातर बेयारो मददगार हो जाते हैं और अपने रिश्तेदारों पर एक बोझ बनकर जीते हैं। Indonesia, as soon as it became an international nation, independent nation, asked the UN to help them in their fight against yaws. इंडोनेशिया जैसे ही आज़ाद एक रियासत बना तो उसने यूएन से मदद मांगी कि उनकी यॉस के ख़िलाफ़ लड़ाई में मदद करें। यॉस मीन्स गर्दन तोड़ बुखार को हम यॉस कहते हैं, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। देयर वर सेड टू बी 10 मिलियन केसेस इन द कंट्री व्हेन द वर्क वाज टेकन अप इन 1950। कहा जाता था कि 10 मिलियन केसेस थे मुल्क में जब काम को शुरू किया गया 1950 में। UNICEF supplied medicines and other requirements, and the WHO sent medical experts to train Indonesian workers. UNICEF ने दवाइयाँ मुहैया की और दूसरी और ज़रूरी चीज़ें मुहैया की, जबकि WHO ने तिब्बी माहिरीन भेजे इंडोनेशियन वर्कर्स को, इंडोनेशियन कारीगरों को ट्रेन करने के लिए, तरबियत करने के लिए उनकी। Indonesia supplied buildings, workers and all the requirements that did not have to come from abroad. इंडोनेशिया ने मुहैया किया इमारतें, कारीगर और दूसरी और वो रिक्वायरमेंट जिनको हम बाहर से नहीं ला सकते थे, बैरून मुल्क से नहीं ला सकते थे। इन 4 years, the hundreds of medical teams trained by WHO and supplied with transport and medicines by UNICEF had examined 11 million people and cured 13 lakh who had yaws. 4 सालों में सैकड़ों तो 4 सालों में सैकड़ों तिब्बी टीमें जिनको ट्रेन किया था WHO ने और जिनको मुहैया किया था ट्रांसपोर्ट, आमदोरफ्त और मेडिसिन दवाइयाँ दी थी यूनिसेफ ने, उन्होंने एग्जामिन किया, मुआयना किया 11 मिलियन लोगों का इंक्योर्ड और इलाज किया 1,300,000 लोगों का हु हैड यॉस, जिनको यॉस की बीमारी थी। Many villages are now free from yaws. In another few years, practically the whole country will be free from it. बहुत से गांव देहात आज आज़ाद हैं यॉस की बीमारी से इंडोनेशिया में, और अगले कुछ सालों में अमली तौर पर पूरा मुल्क इससे आज़ाद होगा। Hunger is the special problem of the Food and Agriculture Organization, which was started in 1943. भूख एक ख़ास मसला है ग़ज़ाई और ज़रई तंजीम का, जो शुरू हुई थी 1943 में। It sends experts to help countries that want advice on how to grow more food and other crops, how to control plant and animal disease, how to protect food in storage, and in general, how to increase the yield of farms, fisheries and forest. ये माहिरीन भेजती है ताकि वो मदद करे उन ममालिक की जिनको ज़रूरत है नसीहत की कि कैसे ज़्यादा ग़िज़ा और दूसरे फसल उगाए जाएँ, किस तरह से पौधों की और जानवरों की बीमारियों पर काबू पाया जाए,
कैसे ग़िज़ा को महफूज रखा जाए और आम तौर पर किस तरह से जो है वो खेतों की पैदावार बढ़ाई जाए और किस तरह से फ़िशरीज़ की, मछलियों की और जंगलात की पैदावार को बढ़ाया जाए। इट आल्सो पब्लिशेस यूज़फुल लिटरेचर ऑन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ये मुफीद लिटरेचर मतलब मैगज़ीन्स वगैरह भी पब्लिश करती है ज़राअत पर, जंगलात पर और माहीगीरी पर। The UN has a special organization to advance knowledge, science and culture, UNESCO, by which people can get the required understanding and the habits of mind that will be useful to them in the modern world. UN की ख़ास तंजीम है इल्म को आगे बढ़ाने के लिए और साइंस और सकाफ़त को आगे बढ़ाने के लिए, जिसको यूनेस्को कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे लोगों को समझ बूझ हासिल होती है हैबिट्स ऑफ माइंड की और वो उनके लिए कारआमद होता है जदीद दुनिया में। लेस दैन हाफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन गो टू स्कूल। दुनिया की बच्चों की आबादी के आधे से भी कम स्कूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रेस कैन नॉट रीड और राइट। ज़्यादातर नस्लें इंसानी ना तो पढ़ सकती है ना तो लिख सकती है। प्रोग्रेस कैन नॉट गो फॉर अलॉन्ग मॉडर्न लाइन्स वेयर हार्डली एनीबडी कैन रीड। तरक्की अब बहुत आगे नहीं जा सकती जदीद इस्तवार पर, जहाँ पर कोई इंसान पढ़ना लिखना ना जानता हो। But UNESCO has found that where most of the people cannot read, learning their letters is not usually they need to begin with. लेकिन यूनेस्को ने यह पाया है कि जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ सकते तो सिर्फ हरूफ को पढ़ना ही वो नहीं है जहाँ से शुरू किया जाएगा। They need to learn some practical improvements in their way of life that they can quickly understand and accept as good. उनको ज़रूरत होती है कि वो सीखें कुछ अमली इम्प्रूवमेंट्स, अमली बेहतरी इन द वे ऑफ लाइफ उनके ज़िंदगी के रास्ते में, ताकि वो चीज़ों को समझ सकें और अच्छी चीज़ों को कबूल कर सकें। आफ्टर दैट दे रियलाइज द एडवांटेज ऑफ लर्निंग टू रीड। बाद में उन्हें अंदाज़ा होगा कि क्या फ़ायदा है पढ़ने का। यूनेस्को कैन नॉट इट सेल्फ फाइंड द मनी टू टीच हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस टू रीड। यूनेस्को के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो सैकड़ों लाखों लोगों को पढ़ा सके। What it can do is to show the various member nations to how to go about the work and to supply certain kinds of training aids. क्या करती है यूनेस्को कि वो मुख्तलिफ़ अरकान ममालिक को बताती है काम कैसे शुरू करना है और वो सप्लाई करती है मुख्तलिफ़ किस्म के तरबियतें और अमदाद प्रोवाइड करती है। As new ways of teachings by books, pictures, films and radios are worked out, the experience is reported to other countries where they may be useful. जैसे कि जदीद तरीके पढ़ाने के, जैसे किताबों से, पिक्चर से, मूवीज़ से, रेडियो से, वो उन पे काम किया जा रहा है, तो ये तजुर्बा रिपोर्ट किया जाता है दूसरे ममालिक को जहाँ पर इनकी इस्तेमाल किया जा सके, जहाँ पर वो फ़ायदेमंद हो। यूनेस्को ट्राइज टू एडवांस ह्यूमन वेल बीइंग थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। दिस एडवांसेस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच लीड्स टू पीस। यूनेस्को कोशिश करती है कि इंसानी ज़िंदगी को जो है वो एडवांस किया जाए तालीम के ज़रिए, साइंस और सकाफ़त के ज़रिए, और यही चीज़ फिर आगे बढ़ाती है इस बैनुल-अक़वामी समझ बूझ को, जो आगे जाकर अमन का बाइस बनती है और दुनिया में अमन या पीस जो है वो कायम होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर, the United Nations. If you want to get a complete summary of a chapter or the explanation, then you can also see my lecture on the summary of this. Thank you very much for listening. If you have any question, if you have any queries, then please do comment, or I have given my WhatsApp number on the description box. You can also contact me there. Fi amanillah.